Good afternoon, everyone. So today is one of the lecture of the biostatistics in the research. So myself is Pikesh Kumar, Department of Psychiatric Nursing from the Metro College of Nursing. So today we will deal with the scales of measurement in the research, how to do the measurement, and there are different types of the scales we are using to measure the data in the following research. So there are four types of the data we are using for the nominal, ordinal, interval, and ratio part of the data scale of measurement. We are using to calculate the data in the following area. So here we'll see the introduction here, that we continue with the introduction. Measurement is a central and essential process of obtaining data. So measurement एक part essential और central part होता है, process होता है जिसके अंदर हम data को obtain करते हैं, प्राप्त करते हैं. So the term measure means to ascertain dimension of quantity or capacity to mark off, usually with the reference to some unit of measurement. So whatever data we are collecting from the participants or respondents, so we have to identify and to judge the quantity and capacity so that we can do the measurement in form of some unit. So this is the term measure means to a certain dimension of quantity and capacity to mark off. मीन्स इससे ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर या किसी भी पर्टिकुलर आइटम या सब्जेक्ट या डाटा की जो क्वांटिटी है उसको या उसकी कैपेसिटी को मेजर करने के लिए एक प्रकार से मेजरमेंट किया जाता है, जो हम उस मेजरमेंट यूनिट को हम इस प्रकार एक रेफरेंस के रूप में हम उसको मेजर कर सकते हैं. So measurement is the assignment of number to object according to the specific rules to characterized quantities of an attributes. So according to the measurement, it is a we have to give the each and every objects we have to assign the numbers according to specific rules which can be characterize the quantities of an attribute. So there are some of the attribute we can have some of the quantities, it will show on the objects in the number of assignment which can be measured for the measurement. So level of correct measurement or a scale of measurement, it is a classification that describe the nature of information within the number assigned to variable. So it means that we have to do the level of measurement, and we are using the scale of measurement for classify the particular information, and we can assign the value of the variable of the particular data. So this is known as the level of measurement. So there are four types of the scale of measurement here: nominal scale, ordinal scale, interval scale, and ratio scale. There are four scales we are using to measure the data, and we have to find out the attribute or any variable. We can characterize the sum of the category of the data in form of nominal scale, ordinal scale, interval scale, and ratio scale. So what do you mean by the nominal scale? Nominal scale means the attributes are only name. इसमें केवल जो attributes होते हैं उनका ही नाम होता है, जैसे कि attributes in the form of any data which can be form of like qualitative and quantitative form. So it can be nominal scale means the attributes are these are the features and characteristics of the following person. So we can add some of the attributes in the data. So it is the lowest level of measurement. ये बहुत lowest level of measurement होता है. It is used for qualitative rather than quantitative. जो qualitative के अंदर qualitative data के अंदर ही use होता है, ना कि ये quantitative data के अंदर. These used for the labeling variable or recognition of a group or individual without any quantitative value. We are not using any quantitative value. We have to categorize a group, and we can label the sum of the variable, and we can recognize a group or individual by giving the category of the person according to the quality of qualitative data. So it should not be a quantitative value. So nominal means that is a name. A nominal scales means that is a label's name,
एंड इस प्रकार यदि किसी भी नॉमिनल का मतलब होता है कि जो किसी भी डेटा के अंदर जो नेम है उनको को ही कैटेगराइज करते हैं, नाम ही उनकी कैटेगरी में आते हैं, ना कि क्वांटिटेटिव वैल्यू के अंदर आते हैं। नॉमिनल स्केल के अंदर जो किसी भी वेरिएबल को हम यदि असेस कर रहे हैं तो उस असेसमेंट के लिए एक क्राइटेरिया होता है जिसको नॉमिनल स्केल के द्वारा मेजर करते हैं, जिसके अंदर वो पर्टिकुलर जो कैटेगरी है उसका नाम और या लेबल में हम उसको कैटेगराइज करते हैं। सो ऑल ऑफ दीज स्केल्स कैटेगरीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसमें कभी भी किसी भी कैटेगरी के अंदर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती, ना दो बार या तीसरी बार वो डाटा एक साथ रिपीट नहीं होता है, नो ओवरलैपिंग होता है। मतलब जो डेटा होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो एक ही टाइम पर होती है, वो कभी वो ओवरलैप नहीं होती, मतलब उसको बार बार दूसरी बार रिपीट नहीं किया जा सकता है। एग्जॉस्टिव कैटेगरी जो एक बिकम म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होती है, वी कैन नॉट टेक एनी पार्ट ऑफ नंबर फ्रॉम द आउटसाइड, मतलब हम बाहर से भी उस वैल्यू का कोई भी जो अंक होता है उसको बाहर से नहीं लेते हैं। ये एग्जॉस्टिव कैटेगरी होती है। एक्सक्लूसिव जो कभी भी रिपीट नहीं होती, किसी भी डेटा में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती, उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। दीज आर द nominal scale. So we can have some of the example of the nominal scale, just like gender. Gender के अंदर male and female, this is the category of the variable. Variable is the gender and male and female are the categories. जो variable के अंदर दो प्रकार की category है आपकी, एक तो male और female है। These are the qualitative data. Then habitat, habitat के अंदर अर्बन, रूरल एंड स्लम, जो व्यक्ति अर्बन एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं, दे आर बिकम हैबिटेट होते हैं, उनको हम कैटेगराइज एक क्वालिटेटिव वे में उसको कैटेगराइज करते हैं। एंड वी आर टेकिंग द सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द nominal scale. Again we can see in the nominal scale a subtype of the nominal scale with only two categories is called as dichotomous. मतलब किसी भी वेरिएबल के अंदर ओनली दो कैटेगरीज होती हैं, किसी भी वेरिएबल के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं, हम उसको स्केल द्वारा मेजर करते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉमिनल स्केल, जिसमें जो कैटेगरीज होती हैं यस और नो, हम किसी भी कैटेगरी के अंदर जिसका जो एक रिस्पॉन्स होता है वो यस और नो में होता है। या जो कैटेगरीज होती है पास या फेल, यदि इसके रिजल्ट की दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति के अंदर दो कैटेगरी होती है, या पास या फेल, उसके अंदर भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। दिस इज अ क्वालिटी ऑफ पर्सन विच शो द रिजल्ट ऑफ द पर्टिकुलर फिनोमेना of particular variable. So this we can have the categories in the two different categories can be called as dichotomous. So here ordinal scale, second one is the ordinal scale. Ordinal scales are attributes can be order. जो attributes होते हैं उनको हम order में करते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो, हम उन एट्रीब्यूट्स को ऑर्डर में फॉलो करते हैं। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, इस तरह हम उसको ऑर्डर में फॉलो कर सकते हैं। हाईएस्ट, मिडिल एंड लोअर, जन लोअर, मिडिल एंड हायर, इस तरह का हम एट्रीब्यूट्स को हम ऑर्डर में करते हैं। ऑर्डिनल स्केल्स आर टिपिकली मेजर ऑफ द नॉन न्यूमेरिकल कांसेप्ट लाइक सेटिस्फैक्शन, dissatisfaction, more satisfaction. These are the categories: happiness, average happiness, more happiness, discomfort, average discomfort, more discomfort. इस तरह की कैटेगरीज होती हैं जिसको ऑर्डर में हम नॉन न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के अंदर हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। सो ऑर्डिनल के अंदर जस्ट लाइक इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर. सो हियर रैंक्स ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन देयर रिलेशन ऑन द स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स। किसी भी वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एक रिलेशन फॉर्म के अंदर उसके स्पेसिफिक कैटेगरी के हिसाब से, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के हिसाब से हम उसको रैंकिंग करते हैं। तो हम इस रैंकिंग के लिए हम ऑर्डिनल स्केल यूज करते हैं। आप देख सकते हो बच्चों कि ऑर्डर ऑफ रैंकिंग ऑन कैटेगरीज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, इसमें जो कैटेगरीज बताई गई है ऑर्डिनल के अंदर, जो हाईएस्ट से स्टार्ट होती है और लोवेस्ट पे खत्म होती है, ना कि लोवेस्ट से स्टार्ट होती है और हाईएस्ट पे खत्म होती है। ये सबसे हाईएस्ट फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, इस तरह का रैंकिंग जो होता है, इस तरह की हम दे सकते हैं कि हाईएस्ट जो है पोजीशन क्या है और लोवेस्ट पोजीशन क्या है, इस तरह का उसको हम
और रैंकिंग में किसी भी कैटेगरी को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो बच्चे देखिए, रिफ्लेक्ट्स ओनली मैग्नीट्यूड, ये केवल मैग्नीट्यूड को ही रिफ्लेक्ट करता है। इसमें 3 पॉइंट चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, एक एब्सोल्यूट 0 पॉइंट होता है और इक्वल इंटरवल होता है। 3 चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं, बट ऑर्डिनल स्केल के अंदर ओनली मैग्नीट्यूड को शो करता है कि डायनामिक कैपेसिटी ऑफ द पर्सन, डायनामिक पावर ऑफ द पर्सन, डायनामिक energy of the particular object or subject, it will show only magnitude. So it does not equal interval, इक्वल इंटरवल के अंदर नहीं होता है, वेरिएशन भी आ सकता है इसमें, कभी ऑर्डिनल के अंदर कोई भी इंटरवल नहीं होता है, ना कि कोई एब्सोल्यूट 0 पॉइंट होती है। एब्सोल्यूट 0 पॉइंट का मतलब होता है कि कोई भी 0 से स्टार्ट नहीं होती है। जस्ट इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो कैन बी ऑर्डर एज इन फॉर्म ऑफ लाइक नॉन न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के रूप में ही उनको हम कैटेगराइज करते हैं। So this is known as ordinal scale. Here we will see the example of the ordinal scales के अंदर, just like health status, and second example is the income. Health status के अंदर just we want to see that poor, fair, good, excellent. Here these are the health status जो हुआ है कि highest से लेकर lowest, just like poor है, fair है, good है, excellent है, लो इनकम, मिडिल इनकम, अपर इनकम, जस्ट लाइक ये एक प्रकार से ऑर्डर के रूप में ऑर्डर है, जैसे कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे लो इनकम के बाद अपर इनकम आ जाए, अपर इनकम के बाद मिडिल इनकम आ जाए, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर का मतलब होता है कि जो किसी भी संख्या है, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम एक ऑर्डर में ही हम उसको करें। जैसे किसी की व्यक्ति की हाइट ज्यादा है, उससे और कम हाइट है कोई, हम इस तरह हम उनको खड़ा करते हैं। तो इस तरह की एक प्रकार से एक ऑर्डर होता है कि एक हम उस ऑर्डर वे में हम उसको खड़ा करें और उसको अरेंज करें। सो जस्ट लाइक वी वांट टू टेक वन ऑफ द एग्जांपल, जस्ट लाइट कार्ट स्केल। लाइट कार्ट स्केल के अंदर इसके अंदर जो दिए हुए हैं आपके लाइकर्ट स्केल के अंदर चेक लिस्ट जो दी हुई है, हम किसी भी लाइकर्ट स्केल के अंदर बिहेवियर को चेक करते हैं। इसके अंदर जो व्यक्ति होता है, रिस्पोंडेंट होता है, वो रिस्पॉन्स देता है उन अगेंस्ट ऑफ दी पर्टिकुलर जो क्वेश्चनर है उनके हिसाब से कि उनका बिहेवियर, एक व्यक्ति का जो बिहेवियर है उसको असेस करना है। तो वी हैव टू असेस द बिहेवियर इन फॉर्म ऑफ स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल एग्री, स्ट्रांगली एग्री। सो हम उसका नंबरिंग भी कर सकते हैं। जैसे स्ट्रांगली डिसएग्री के लिए 5 दे सकते हैं, डिसएग्री के लिए 4 दे सकते हैं, न्यूट्रल एग्री के लिए 3 दे सकते हैं, स्ट्रांगली एग्री के लिए 1। इस तरह के हम उसको कैटेगराइज हम कर सकते हैं। सो हियर लाइकर्ट स्केल को जस्ट हम यहाँ पर न्यूमेरिकल फॉर्म में ना दिखा करके हम जस्ट उसका जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है वो शो करते हैं यहाँ पर। सो स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, then neutral agree and strongly agree, just in Likert scale के अंदर। Likert scale is type of behavior scale. So here third type of scale, interval scale. Interval scale, it is the distance is meaningful. इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, इक्वल डिस्टेंस के अंदर। सो डिस्टेंस जो होता है वो मीनिंगफुल होता है, ना कि कोई वेरिएशंस नहीं होता। सो इंटरवल स्केल्स आर न्यूमेरिक क्लास इन विच वी नॉट नो, we know not only the order but also the exact difference between the values. इंटरवल स्केल जो होता है इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल स्केल्स के अंदर होता है, क्वालिटेटिव फॉर्म के अंदर नहीं होता है, जो हम इसको ऑर्डर में शो नहीं करते हैं, बट दो वैल्यूज के बीच में जो एग्जैक्ट डिफरेंस होता है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। इंटरवल स्केल के अंदर जो वैल्यू है आपकी दो है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इनमें इक्वल डिस्टेंस आ रहा है। तो इंटरवल स्केल के अंदर इंटरवल जो है इक्वल स्पेस इन बिटवीन, इक्वल आ गया। जैसे कि आपका 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, इस तरह का इक्वल स्पेस इन बिटवीन आ गया, आपका नेम आ गया, ऑर्डर आ गया। डिफरेंस बिटवीन द ईच आइटम इज जस्ट सेम। इनका जो डिफरेंस होता है वो हम उसमें फाइंड आउट करते हैं, जो इक्वल डिफरेंस होता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ रैंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एन एट्रीब्यूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दोज ऑब्जेक्ट। यदि हम किसी वस्तु की रैंकिंग कर रहे हैं, उसको स्पेसिफिकेशन करने के लिए उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका डिस्टेंस बिटवीन, जो डिस्टेंस होता है वो उन ऑब्जेक्ट के जस्ट इक्वली होता है, कोई वेरिएशन नहीं होता है इसके अंदर। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट इक्वल डिस्टेंस होता है ऑल कैटेगरीज के अंदर।
चाहे आप 10 to 20 कर सकते हो, या 10 to 5 to 10 कर सकते हो, या 10 to 15 कर सकते हो, 15 to 20 कर सकते हो, या 50 to 100 कर सकते हो। ये मोर और लेस भी हो सकता है। इक्वल न्यूमेरिकल डिस्टेंस बिटवीन द इंटरवल। सो नो एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट, इसमें कोई भी एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट नहीं होता है। एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट का मतलब होता है कि इसमें जीरो से कभी स्टार्ट नहीं होता है। बट आर्बिटरी का मतलब होता है, आर्बिटरी जीरो, कि हम अपने हिसाब से, जो रिसर्चर होता है वो अपने हिसाब से जीरो ले सकता है, जीरो मान सकता है, जिसको हम कहते हैं आर्बिटरी जीरो। नो एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट का मतलब होता है कि किसी भी कैटेगरी के अंदर जीरो नहीं होता, बट ये डिपेंड्स करता है रिसर्चर के ऊपर कि वो आर्बिटरी जीरो को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। आर्बिटरी का मतलब है कि जो खुद उस जीरो को मान रहा है, किसी जीरो मान लिया उसने किसी भी डाटा के अंदर, तो ये इंटरवल स्केल का है जो इंटरवल में फॉर्म में दिखाया गया है। यहाँ पर है एग्जांपल ऑफ द इंटरवल स्केल के अंदर ये दिया हुआ है कि 10 to 80 डिग्री, 40 to 50 डिग्री, जिस तरह का टेम्परेचर होता है 10 to 80 डिग्री है, 40 to 50 डिग्री है, ठीक है। तो इंटरवल जो है वो 10 to 80 के अंदर जो आगे आने वाली कैटेगरी है उनके अंदर सेम होगा, 40 to 50 डिग्री है उसके अंदर भी सेम होगा ये कैटेगरी के अंदर। ये इंटरवल स्केल के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे कि रेशियो स्केल क्या होती है। व्हाट डू मीन बाय द रेशियो स्केल? रेशियो स्केल्स मींस हियर एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट। इसमें एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट होता है क्योंकि जो भी कैटेगरी स्टार्ट होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, इसमें जीरो पॉइंट होता है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है, नॉमिनल है जो है ये लोवेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है, और जो रेशियो स्केल है ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है। इसमें तीन एट्रीब्यूट होते हैं जो आप क्लास में बताया था मैंने। इसमें तीन एट्रीब्यूट क्या क्या है? मैग्नीट्यूड है, इक्वल इंटरवल है, एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट है। इसमें ये डायनामिक कोई भी कितने भी नंबरिंग हो सकती है, कोई भी उल्टी सीधी ज्यादा कम हो सकती है। इक्वल इंटरवल होता है, बराबर इनकी संख्या जो है वो इक्वल इंटरवल के बराबर होती है। एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट, एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट का मतलब है कि इसके अंदर जीरो एब्सोल्यूट होती है, मतलब जीरो से स्टार्ट हो सकती है। ये कंटिन्यूअस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर कंटिन्यूएशन वैल्यू होती है जो रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि एग्जांपल की हम बात करें रेशियो स्केल के अंदर, biophysical parameters. So biophysical parameters in that weight and height, volume, blood pressure here. So weight होता है, हम इसको जीरो से स्टार्ट भी कर सकते हैं लास्ट तक। हाइट जो होती है उसके अंदर वॉल्यूम है आपका, जीरो से स्टार्ट होता है वॉल्यूम। ब्लड प्रेशर है वो भी आपका जीरो से स्टार्ट होता है, हम उस कैटेगरी को आगे ऊपर तक कभी भी ले जा सकते हैं। तो रेशियो, ये हमेशा रेशियो शो करते हैं जिसको बायोफिजिकल पैरामीटर के अंदर इस तरह इसको दिखाया गया है। So thank you everyone, those who are listening this video. So there are the scales of measurement here is covered, and there are four types of the scale of measurement: nominal scale of measurement, then ordinal scale of measurement, interval scale of measurement, and ratio level of measurement. So we discussed and we studied about there are four level of measurement we are doing in the data in form of qualitative and quantitative data. When we are defining the socio-demographic variable, it should come like measurement of the data. So thank you everyone.